these some rules to solve these inequalities, and then we'll start our exercise 6.1. Done. So inequality. So this equality or inequality basically used for the comparison. Done. इनइक्वालिटी बोलो या फिर कंपैरिजन या फिर इक्वालिटी बोलो, that is basically used for the comparison. So what is comparison? So comparison, we can perform comparison between two like quantities, है ना. किसी के आप मार्क्स कंपेयर करवा सकते हो, किसी का आप वेट कंपेयर करवा सकते हो, है ना. लेकिन किसी का वेट किसी के मार्क्स के साथ आप कंपेयर नहीं करवा सकते. सो कंपेरिजन कैन बी डन between two like quantities. So for example, we are having two like quantities x and y. Consider some like quantities x and y. So here comparison between these two like quantity, it will give three outputs, है ना. आप किसी दो क्वांटिटी के बीच में आप कंपैरिजन करवाएंगे तो हमें टोटल तीन आउटपुट मिलेंगे. सो कंपैरिजन कैन बी दे में इक्वल और x is greater than y or x is less than y. Done. So for comparison we are getting total three outcomes. Two quantities, two like quantities may be equal, or one quantity may be greater than another quantity, or one quantity may be less than the another quantity. So here, out of these three outcomes, this first outcome, this first outcome is nothing but the equality. Both are equal. So this is known as equality, and from this equality, we can derive equations. Equations, and these two outcomes are nothing but the inequality. So from this inequality, we can derive inequalities. Inequalities. Done. So this is equality. And sometimes while comparison, we are also getting like this. If A is greater than B, or you can say this X, we have considered two quantities X and Y. So when X is greater than Y, and sometimes, occasionally, sometimes it may occur, or X is also equal to Y, है ना. मैक्सिमम टाइम पर हमारा x ग्रेटर देन y है, लेकिन समटाइम्स इट मे अकर और x becomes equal to y. So for this type of condition, we can write x greater than or equal to y. Done. Or sometimes it may occur x is less than y and x is become equal to y. So here for this case we can write x less than or equal to y. So two types of inequalities are there. Two types of inequalities are there. It may be like this: x greater than y or x less than y. For second case, it may be like this: x greater than or equal to y or x less than or equal to y. Done. So this type of equality in which one quantity is always greater than or less than equal to y, they never become equal. So this type of equality is known as strict equality. Which type of equality? Strict inequality. Strict inequality. And when occasionally, है ना, x is greater than y, but occasionally sometimes our x becomes equal to y, or sometimes x less than y, and sometimes our x become equal to y. So this type of inequality is known as slack inequalities. Clear? Strict inequality and slack inequality. इसमें किसी को कोई डाउट? Two types of inequalities are there. For strict inequality, x greater than y or x less than y, and occasionally if x and y becomes equal, then less than or equal to or greater than equal to types of inequality are known as slack inequality. So two types of inequalities are there. Done. So now we will define our inequalities. Definition of inequalities. ये समझ में आ गया इनइक्वालिटी? अभी इसको डिफाइन करेंगे, है ना. So what is inequality? So here comparison between two quantities,
है ना. So these two quantities can be a two real number or it can be any algebraic expression. Done, because you have to study mathematics. तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स होंगे या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा, कांस्टेंट वैल्यूज होगी या फिर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स होगा. So two real number or maybe algebraic expression. So definition of inequality is two real numbers, two real numbers और दो रियल नंबर ले लो या फिर रियल नंबर एंड वेरिएबल्स ले लो तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो टू रियल नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना. यहाँ पर हमने देखो दो क्वांटिटी कंसीडर की है. दिस टू क्वांटिटीज कैन बी टू रियल नंबर और इट कैन बी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रिलेटेड बाय, है ना. दिस आर द रिलेशंस, दे मे बी इक्वल, मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन, आर रिलेटेड बाय which signs x greater than y, that is greater than, less than, or greater than, equal to, less than, equal to. If this expression or real numbers are related by these signs, ये कोई साइन नहीं है, ये मैंने रफ किया हुआ है ना. ये टोटल 4 साइंस है. are related by these 4 signs, then they are called as inequalities. Done. Two real numbers or any two algebraic expressions are related by these signs, greater than, less than, greater than or equal to, or less than equal to sign, then they are known as inequalities. Done. There are two types of inequalities: strict inequalities and slack inequalities, and also according to number of variables. Inequality may be one variable inequality or inequality with two variables. So linear, here you have to consider linear, है ना. So first we'll consider linear inequality, linear inequality with one variable. So what is linear inequality with one variable? So any inequality which is in the form of ax plus b less than 0, or ax plus b greater than 0, or ax plus b less than or equal to 0, or ax plus b greater than or equal to 0. So here only one variable is there, x. This is known as inequality with one variable, and power of variable x is 1, and that's why it is known as linear inequality. So any inequality which is in the form of x plus b, with variable with power 1 and with only one variable, this is known as linear equality in one variable. Simple. Similar, linear inequality with two variables, linear भी है और two variable है. So this linear inequality with two variables are in the form of ax plus by, और constant को सामने लिखे, so it may be greater than c, 0 भी कर सकते हो आप, ax plus by less than 0, ax plus by greater than equal to c, ax plus by and ये c less than or equal to c. So here two variables are used, x and y, and power of both variable is 1. So this type of inequalities are known as linear inequalities with two variables. So in this chapter number 6, we have to discuss this both type of linear equalities, how to solve these linear equalities and how to represent the solution of these linear equalities graphically. Done? इसमें किसी को कोई डाउट? Now, solution of these linear inequalities. Solution क्या होता है? तो जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है वैसे ही सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी होता है. सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन we are finding the values of x, or we can say all the values of x which satisfy our equation is known as
solution of equation. Here instead of equation we are having inequalities, so we can find the set of values of x, है ना, यहाँ पर set of value मिलेगी inequality के लिए, क्यों देखते हैं आगे चलो. So here solution of inequality is nothing but the set of values of x which satisfy inequality, is called solution of inequality. Done. Set of values of x which satisfy our given inequality is known as solution of inequality. Here we are getting the solution of values, a set of values, है ना, एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वन इनइक्वालिटी 2x plus 3 less than 25. So this is one inequality, है ना. This is the comparison between one algebraic expression, two algebraic expressions. So here we have to find the value of x for which this expression is less than 25. So if we put x equal to 1, so it's a 2 plus 3, 5. 5 is less than 25. So inequality will be true. So first solution of this inequality is x equal to 1. If we take x equal to 2, so it's a 2 2 4 plus 3, 7. 7 less than 25. So we are, so for the value of x equal to 2, now for x equal to 2 our inequality is also true. So x equal to 2 is the solution of this inequality, है ना. उस तरह से आप x equal to 3 भी put कर सकते हो. 3 2 6 plus 3 9. 9 is less than 25. So again x equal to 3 is the solution of this inequality. So we are getting the set of values of x, है ना. कोई एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू आप मिल सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द inequality. A set of solution of this inequality may be infinite. Done. तो आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, and that's why it's a set of values of x. So what is the solution of inequality? The set of values of x which satisfy our inequality is known as solution of inequality. Done. So to find the solution of this inequality we have to consider some basic rules, है ना. बेसिक रूल्स थोड़े आपको है वो ध्यान में रखने हैं. So rules basic rules for the solving these inequalities. दो ही रूल है वो आपको याद रखना है. बेसिकली एक ही रूल है ना. क्या रूल है देखो. पहला, फर्स्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी दो साइड होती है ना. एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है. जैसे हम इक्वेशन में करते हैं कि जो भी हम करेंगे दोनों साइड इक्वली करेंगे, है ना. ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर कौन सा रह गया, सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना. तो जो भी आपको करना है सेम नंबर से दोनों साइड करना है. तो दोनों साइड आपका नंबर सेम रहेगा, है ना. ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो करना है वो दोनों साइड इक्वल नंबर से करना है. सो इफ इक्वल नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ना, इक्वल नंबर्स जो भी करना है वो सेम नंबर से करना है. सो इक्वल नंबर्स ही लेना है. ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड आप 3 ऐड करो और राइट हैंड साइड पर 5 ऐड करो, ऐसा नहीं होगा. सो इक्वल नंबर्स, है ना, क्या करना है, इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड, और सब्ट्रैक्टेड, equal numbers can be added or subtracted on the both side of inequalities, both sides of inequalities. तो इक्वल नंबर आप इनइक्वालिटी है उसके दोनों साइड ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. जो इनइक्वालिटी की साइन होगी वो चेंज नहीं होगी, है ना. इनइक्वालिटी की साइन है वो चेंज नहीं होगी. कब? जब आप इक्वल नंबर दोनों साइड ऐड करेंगे या फिर इक्वल नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे. डन. ये फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड सेम वे. पॉजिटिव नंबर, है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आपको साइन भी चेक करनी है. सो इक्वल पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल पॉजिटिव नंबर्स, कैन बी मल्टीप्लाइड और
divide on both sides of both sides of inequalities, है ना, इक्वल पॉजिटिव नंबर equal positive numbers equal positive numbers can be added equal positive numbers can be multiplied or divided on the both sides of inequalities. The sign of inequality will not change, है ना. इक्वल इनइक्वालिटी की साइन चेंज कब होगी? सो फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर दिस नेक्स्ट पॉइंट. इफ नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, है ना. साइन ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन ऑफ inequalities, sign of inequality will change if we multiply if we multiply or divide it on both side with क्या होगा? नेगेटिव नंबर, विथ नेगेटिव नंबर. अगर आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज. डन. चेंज कहाँ पर नहीं आएगा? आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करो दोनों साइड सेम नंबर से, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना. पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऑन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा, बट इक्वालिटी चेंज हो जाएगी कब? अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो. डन. सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल लेके समझाओ. कोई बात नहीं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं. नंबर्स का कंपैरिजन करें. सपोज वी आर हैविंग 2 लेस देन 7. दिस इज वन इनइक्वालिटी ना. ये पता है हमें कि 2 is always less than 7. Now first case, if we add or subtract equal number on both sides, equality will not change. That means sign of this inequality will be not change if we add equal number on both sides. दोनों साइड हम 5 ऐड करें, तो 2 + 5 ऐड करो, यहाँ पर 5 ऐड करो, तो क्या होगा? 7 लेस देन 12. तो देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी 7 थी, यहाँ पर इनइक्वालिटी ऐसे ही है ना, लेस देन. सो हियर इनइक्वालिटी इज नॉट चेंज when equal numbers are added. When equal numbers are added, inequality will be not change. Same way, when equal numbers are subtracted, inequality will be not change. दोनों साइड 1 1 subtract करो चलो. So 2 minus 1 will be less than 7 minus 1. It's a 1 less than 6. दोनों साइड हमने इक्वल नंबर subtract किए, then equality will not change. डन. तो एडिशन करने से इक्वल नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. मल्टीप्लाई करके देखो कौन से? पॉजिटिव नंबर, है ना. 2 लेस देन 7. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी विथ सम पॉजिटिव नंबर. 5 ले ले. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये क्या होगा? 10. ये क्या होगा? 35. देखो 2 less than 7, and if you multiply on the both side with 5, positive number 5, then inequality will not change. Inequality change नहीं होगी. डन. सेम अब डिवाइड कर लो तो भी चेंज नहीं होगी. चेंज कब होती है? when we multiply or divide on both side by नेगेटिव नंबर. तो देखो नेगेटिव नंबर से एक चेक कर लेते हैं. सपोज 2 लेस देन 7, है ना. 2 इज लेस देन 7. अभी हम दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये क्या होगा? -6. और ये क्या होगा? -14. यहाँ पर लेस देन साइन थी, तो क्या हम यहाँ पर लेस देन साइन पुट कर सकते हैं? ये चेंज हो जाएगा, है ना. ये चेंज हो जाएगा. -6 ग्रेटर देन -14. क्लियर. तो इफ वी, हाँ बोलो. हाँ ओके ओके भाई, माय मिस्टेक. अब ये कॉन्सेप्ट पर फोकस करो. 21. सो -6 ग्रेटर देन -21. So here sign of this inequality change. Sign of inequality change when we multiply on the both side with negative number. Clear? ये समझ में आया? सेम वे आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, है ना. नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, then then also the sign of inequality will be changed. Clear? So these are the some basic rules
to solve these inequalities. So let's start with our exercise 6.1 to solve these inequalities. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा है. Now exercise number 6.1. Exercise 6.1, question number 1. So here we have to solve this inequality for two conditions when x is natural number and x is integer. देखो according to condition our solution will be change. कैसे change होगा देखो. आपको ये नंबर सिस्टम की थोड़ी है ना, वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर इनइक्वालिटी गिवन 24x less than 100. So we have to solve this inequality for first condition. First condition is when x is natural number. So you have to solve this inequality for natural number. And second case when x is integer. x belongs to integer होता है z, है ना. ये z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला z नहीं, ये z हमारा इंटीजर वाला z है ना. बोलेंगे सर यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर. So for these two cases we have to solve this inequality. So first case हमें natural number निकालना है. So value of x which satisfy our inequality. So क्या होगा देखो, 24x less than 100. Now we have to find the value of this x, है ना, set of all the values of x which satisfy our inequality. So to find the value of x we have to divide on both side by 24. Dividing on both side by 24 and 24 is positive. So if we divide on both side of inequality by positive number, inequality will not change. Inequality will not change by dividing on both side by some positive number. Positive number से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. So it will be x less than 100 upon 24. So x less than 100 upon 24 कटिंग करे तो 4 6 जा 4 25 जा, तो ये 6 4 जा 4 पॉइंट समथिंग आएगा. x is less than 4 पॉइंट समथिंग ना, 4 पॉइंट समथिंग वो जो भी आएगा. तो x कैसा होना चाहिए, x is नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. तो बोलो नेचुरल नंबर लेस देन 4 पॉइंट समथिंग कौन से नंबर होंगे. सो 4 पॉइंट सपोज 4.2 आ गया है, ये 4.2, तो इसके छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4 3 2 1 कहाँ तक जाएगा, 1 तक. सो सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू n. तो आपको सेट में लिखना है. सो x may be 1 2 3 and 4. x may be 1 2 3 and 4. डन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर x बिलोंग्स टू n. नेचुरल नंबर ही होने चाहिए. नाउ सेकंड केस we have to solve this inequality, same inequality 24x less than 100. For this condition x can be integer, तो x की सॉल्यूशन क्या होगी, तो ये सिंप्लीफिकेशन तो सेम आएगा है ना. x लेस देन 100 अपॉन 24 और x होगा लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. तो अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है. x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. अगर x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग और हमारा x कैसा होना चाहिए, इंटीजर. That means all the integers which are less than 4 point something. So 4 point something से less than वाले integers कौन से मिलेंगे, तो एक तो 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 इंटीजर में आएगा, हाँ, -1 -2 इनफाइनाइट तक जाएगा. सो सॉल्यूशन इज माइनस में इनफाइनाइट तक जा गया और ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4. So this is the solution of this inequality for the second condition. देखो आंसर चेंज हो गया. नेचुरल नंबर था तो ये सॉल्यूशन है, अगर x हमारा इंटीजर है तो ये सॉल्यूशन है. फॉर दिस वैल्यूज ऑफ x और इनइक्वालिटी विल बी सेटिस्फाई. क्लियर. एनी डाउट. सेकंड वन -12x less than 30. solve this inequality for again two cases. फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट केस when x belongs to नेचुरल नंबर होना चाहिए. एंड सेकेंड केस
x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दोनों के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। सो फॉर x बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, कौन से नेचुरल नंबर के लिए हमारी इनइक्वालिटी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो इनइक्वालिटी इज -12x लेस देन 30। अभी मुझे तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए to find the value of x I have to divide on the both side with some -12। -12 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, तभी जाके -12 कट होगा तो मुझे x के फॉर्म में इनइक्वालिटी मिलेगी। सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विथ -12। सो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो दिस विल बी x लेस देन का होगा ग्रेटर देन 30 अपॉन -12, सो इट्स -30/12। क्लियर? x ग्रेटर देन -30/12। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा ये ऐसे है, -12 ग्रेटर देन 30 है ना, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने, तो ये ऐसे दिया हुआ है, तो अभी ये ऐसे हो जाएगा। डन। सो x लेस देन, देखो -30/12 क्या होगा, 6 2 जा 6 5 जा -2.5। सो x लेस देन -2.5, -2.5 से छोटे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। और x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। सो विच आर द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन -2। -2 से छोटे नेचुरल नंबर क्या मिलेगा? अरे भाई नो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो -2 से छोटा होगा। -2 से छोटा होगा, नंबर लाइन पर हमें लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा। सो -2 से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, -3 मिलेगा, -4 -5 मिलेगा, तो वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। सो वी आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन, है ना, x लेस देन -2.5। क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ फॉर x बिलोंग्स टू z, इट्स a -12x ग्रेटर देन 30। अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो क्या होगा, x लेस देन -2.5, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर। ना अभी हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स। तो अभी बोलो कौन से इंटीजर होंगे जो -2.5 से लेस देन होंगे। तो -2.5 के -3 आएगा, -3 -4 -5 माइनस, डन। तो कौन सा मिलेगा, माइनस से इनफाइनाइट तक जाएगा -3 से। सो ये -5 -4 -3, डन। सो -2.5 है तो -2 -2.5, उसके बाद आएगा -3 -4 -5 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। So this is the solution of this inequality. Clear? Now question number 3. Third question, solve this inequality. Same question है सब अभी, 5x minus 3 less than 7. First condition, when x belongs to natural number and x is a real number, x belongs to real number। देखो रियल नंबर पर थोड़ा चेंजेस आएगा, क्या होगा। So here for x belongs to natural number, our inequality is 5x minus 3 less than 7। नाउ एडिंग 3, है ना, मुझे तो कैसे भी करके x निकालना है, तो -3 को प्लस करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड +3 ऐड करूंगा, तो ये -3 +3 ऐड हो जाएगा। इन शॉर्ट जो इक्वेशन में कर रहे हैं ना वही, -3 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो प्लस होगा। तो सेम प्रोसीजर हो रही है, देखो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। सो 5x लेस देन 10 होगा, तो यहाँ पर -3 + 3 0 हो गया, और ये 7 + 3 10 हो गया। नाउ अभी तो मुझे x चाहिए, अगेन वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 5। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी विल बी नॉट चेंज। सो इट्स x लेस देन 5 2 10। So now we have to find the value of x which is less than 2 and natural number। सॉरी ये फिर से गलत लिखा, ये हमें इंटीजर फाइंड करना है। सो इंटीजर, सो 2 से छोटे इंटीजर कौन से आएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सो ये इनफाइनाइट तक -4 -3 -2 -1 0 1,
है ना, 2 से छोटे तो 1 1 तक आएगा। डन। नाउ यू टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या होगा, तो 5x माइनस 3 ये सब सेम आएगा ना, 5x लेस देन 10, x लेस देन 2। नाउ 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स 2 से छोटे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फ्रैक्शन भी आएगा, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ आएगा, लेकिन 2 से लेस देन होने चाहिए। तो ये जो बिलोंग्स टू आर वाले जो रियल नंबर वाले होते हैं जब क्वेश्चन, उसकी जो लिखना होता है हमें, वो हमें लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ, डन, इट्स अ माइनस इनफाइनाइट टू 2, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। सो 2 upper limit is 2 and lower limit is up to minus infinite. Done. So 2 to minus infinite. So here 2 is not included and all the real numbers less than 2 are the solution of our inequalities. Clear students? So this is how you can solve your question number 3. Now question number 4. Question number 4. Solve this inequality. Same question is there. 3x plus 8 less than 2. So here you have to solve this x for integer. X belongs to z, है ना, integer के लिए, and x is real number. x belongs to r. सेकंड केस रियल नंबर के लिए करना है। तो देखो क्या होगा, 3x प्लस 8 लेस देन 2। डन। 8 है, 8 को रिमूव करने के लिए मैं माइनस 8 करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन इक्वली नंबर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करूंगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो दिस विल बी 3x लेस देन 2 माइनस 8 माइनस 6। अभी दोनों साइड 3 से डिवाइड करूंगा, सो x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन -2। सो x ग्रेटर देन -2 से बड़ा, है ना, इंटीजर, तो -2 से बड़ा इंटीजर तो राइट हैंड साइड पर जाना है, तो -2 से राइट हैंड साइड पर जाना है और -2 को इंक्लूड नहीं करना है, और इंटीजर तो क्या मिलेगा हमें, -2 से बड़ा, तो उसके आगे -2 से एग्जैक्ट आगे इंटीजर आएगा, वो -1 आएगा, उसके बाद 0 1 2, और तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, है ना, -1 0 1 2 अप टू इन्फाइनाइट। और सेम आपको लिखना है इसको रियल नंबर के फॉर्म में। तो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, सो 3x ग्रेटर देन -6, सो x ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर आपको x ग्रेटर देन -2 लिखना है, लेकिन सारे रियल नंबर्स, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा इंटरवल, तो -2 से बड़ा, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ओपन इंटरवल आएगा, ओपन, है ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, जिसके अंदर -2 इंक्लूडेड नहीं है, -2 को हमने एक्सक्लूड किया, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, और कहाँ तक जाना है, इन्फाइनाइट तक, तो ये इन्फाइनाइट। सो -2 टू इन्फाइनाइट, जिसके अंदर -2 इंक्लूड नहीं किया हुआ है। डन। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि -2 इंक्लूड हो गया, लेकिन आप ये इसको ये कंसिडर नहीं करना है ना, ये नोटेशन भी होता है, मैंने आपको सिखाया था। तो -2 to infinite is the solution of this inequality for the real number. Clear? Now next question. For this